Hello everyone, hope all of you are doing good. In previous lecture, we have discussed the concept of the price ratio and the slope of budget line. And now in this lecture, our last lecture finally is consumer equilibrium ka. We will discuss the concept of the determination of consumer equilibrium as per the ordinal approach. We are studying the ordinal approach. इससे पहले हमने cardinal approach पढ़ी थी और cardinal approach में we have discussed the concept of consumer equilibrium. हमने उसमें marginal utility of commodity, जब marginal utility of money के equivalent हो जाए accordingly, तो उसमें consumer equilibrium strike हो जाता है. और ordinal approach में basic difference is that in cardinal approach we can measure the utility or satisfaction in the absolute term, but in case of ordinal approach it is not possible. Here we can rank our preferences कि भाई हमारा कौन सा preference है. और इसके लिए आपको दो concept बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए. First concept is the concept of indifference curve and second is the concept of budget line. All the concepts of indifference curve and all the concept of budget line already उसके बहुत सारे dedicated lectures है, पूरी एक playlist है. तो better you refer all those lectures before watching this lecture actually, क्योंकि उससे पहले आपको price ratio का और marginal rate of substitution का इन सब के concept basically समझ में आना चाहिए. Fine. तो देखिए, मैंने आपसे किससे कहा कि भाई आपको ordinal approach में अगर equilibrium पढ़ना है तो हमारे पास दो कंसेप्ट समझ में आना चाहिए. फर्स्ट कंसेप्ट इज द कंसेप्ट ऑफ प्राइस रेशियो एंड सेकंड इज द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई. ठीक. एंड प्राइस रेशियो, कंसेप्ट ऑफ प्राइस रेशियो आपको बजट लाइन से मिलता है एंड एमआरएस ऑफ एक्स वाई आपको मिलता है फ्रॉम इंडिफरेंस कर्व. तो ये दोनों के कंसेप्ट बेसिकली आपके पास होना बहुत ज़रूरी है. फाइन. तो बजट लाइन कंसेप्ट एंड एमआरएस ऑफ एक्स वाई, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई इन केस ऑफ ऑर्डिनल अप्रोच इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑकर्स व्हेन price ratio is equals to the marginal rate of substitution of x over y. तो जब ये हमारा equal हो जाएगा, in that case only our equilibrium point will be struck. अब ये कैसे होता है? Now we will discuss the phenomena. हमारे पास ग्राफ था, हम पहले भी उसमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. This is our y-axis and this is our x-axis. X-axis, y-axis. Here we are having good x and good y. Fine. This is our point of origin. ठीक. And now this is our budget line. AF, जो भी आप इसको नाम दे दो. AF is our budget line. हमने इसको पहले भी AF से रिप्रेजेंट किया था. फाइन. और अच्छा, बजट लाइन एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द परचेज ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स. बजट लाइन आपके परचेज को रिप्रेजेंट करती है. फाइन. हियर वी हैव वन अनदर कंसेप्ट ऑल्सो, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व. वी हैव, लेट्स सपोज दिस इज आवर फर्स्ट IC कर्व, IC1 है ना, और वी हैव सेकेंड IC कर्व. This is our, let's suppose this is our IC2, and now we have third IC curve, IC3. Fine. So we have here three IC curves. IC curve actually represents whatever satisfaction we will derive by consuming the given product. ठीक है ना? तो we have three IC curves, IC1, IC2 and IC3. Now actually the equilibrium point is nothing but it is the combination of both the concepts. दोनों concepts का हमें combination basically इसके अंदर पढ़ना है. Fine. पहले हम इसकी बात करें. ये हमारा represent करता है हमारी budget line. Maximum कितनी यूनिट्स हम इसको परचेज कर सकते हैं, ये हमारी इनकम को रिप्रेजेंट कर सकता है. एक्चुअली बजट लाइन एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द इनकम और हाउ मेनी कमोडिटीज वी कैन बाय इन आवर अवेलेबल इनकम. जो भी हमारा इनकम कंस्टेंट है उसमें हम कितनी कमोडिटीज मैक्सिमम परचेज कर सकते हैं. नीचे भी परचेज कर सकते हैं, नीचे परचेज करेंगे तो हमारी इनकम कुछ बन जाएगी, फुलर यूटिलाइजेशन नहीं होगा. एंड व्हाट इंडिफरेंस कर्व एक्चुअली रिप्रेजेंट्स, इट रिप्रेजेंट्स द सेटिस्फैक्शन. व्हाट सेटिस्फैक्शन एक्चुअली derived
बाय कंज्यूमिंग द गिवन कमोडिटीज। जो दो कमोडिटीज हैं उन कमोडिटीज को कंज्यूम करने से हमें कितना सेटिस्फैक्शन एक्चुअली डिराइव्ड होगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द बजट लाइन। नाउ वी हैव बोथ द कॉम्बिनेशंस, एक तो हमारी इनकम हम कितना परचेज कर सकते हैं और दूसरा कितना उससे एक्चुअली हम सेटिस्फैक्शन डिराइव कर सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन एक्चुअली यही तो हमने इवन उधर भी यही पढ़ा था किस केस में, इन केस ऑफ कार्डिनल अप्रोच, कि भाई हमने प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी देखी थी और उसमें उस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी देखा था। जब इक्वल हो गया तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। इन दिस केस आल्सो हम हमारी प्राइस देख रहे हैं उसके अंदर कि भाई कितनी कमोडिटीज हम कंज्यूम कर सकते हैं और उस कमोडिटी से एक्चुअली व्हाट सेटिस्फैक्शन वी आर गोइंग टू डिराइव आउट ऑफ दोस कमोडिटीज। फाइन, अब हम देखिए इसके अंदर we have three ICs, IC1, IC2 and IC3, और as per the monotonic preference we have already discussed that more is preferable over less। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आपको IC1, IC2, पहले हम IC की बात कर रहे हैं, IC1, IC2, IC3 में से एक सिलेक्ट करना है, then you will select IC3 because we are the rational consumer। हमें कंज्यूमर को रैशनल अज्यूम करना पड़ेगा हर इकोनॉमिक थ्योरी के अंदर, that consumer is rational and being a rational consumer we will always go for the ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन और हायर कॉम्बिनेशन। भाई IC1, IC2 और IC3 में से अगर आपको ऑप्ट करने का बोला जाए तो बीइंग अ रैशनल कंज्यूमर वी विल ऑप्ट फॉर द IC3 बिकॉज इट गिव्स अस द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अभी हम बजट की बात नहीं कर रहे, फाइन। तो वी विल सिलेक्ट द IC3 मींस सेटिस्फैक्शन फ्रॉम IC3 इज ग्रेटर देन IC2 इज ग्रेटर देन IC1। सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन IC3 से मिलेगा, देन IC2 से और फिर IC3 से। एंड बीइंग अ रैशनल कंज्यूमर वी विल गो फॉर IC3 एनीवे, अभी हम उसकी बात नहीं करते। और बजट लाइन में हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर, जितनी भी हम बात करें उसमें कि भाई इसमें ये अलग अलग पॉइंट्स है, तो जितने भी हम पॉइंट्स की बात करेंगे हर पॉइंट पर हमें हमारी इनकम जो होगी वो ओवरऑल कंज्यूम हो जाएगी, ओवरऑल हमारी इनकम कंज्यूम हो जाएगी। लेट्स सपोज अब देखें यहां पर वी हैव सम इंटरसेक्शंस ऑफ बजट लाइन एंड वन दिस पॉइंट आल्सो व्हिच गोस टेंजेंट टू द बजट लाइन, ठीक है ना। कुछ इंटरसेक्शंस है और कुछ टेंजेंट है। फर्स्ट विल टॉक अबाउट द IC1। तो इन केस ऑफ IC1 लेट्स सपोज वी विल गिव दिस पॉइंट एज पॉइंट P और बीच में एक पॉइंट ले लेते हैं पॉइंट Q एंड दिस इज अवर पॉइंट R। ये हमारे 3 पॉइंट्स हैं। हम सबसे पहले विल टॉक अबाउट द IC1। ओके फाइन। अब देखें इस अगर हम बात करें एज पर द इंडिफरेंस कर्व कंसेप्ट, हाँ, तो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो हमें यूटिलिटी मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगा फ्रॉम पॉइंट P इज इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू R। सेटिस्फैक्शन हमें P, Q और R से सेम मिलने वाला है, ठीक है ना। वी आर रिसीविंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम P, Q एंड R। यहां से रिसीव होने वाला सेटिस्फैक्शन इक्वल है। बट अगेन इफ वी टॉक अबाउट द बजट लाइन, 2 पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द बजट लाइन एंड 1 पॉइंट इज लाइंग बिलो द बजट लाइन। मींस एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें, एक्सपेंस इन केस ऑफ P एंड R, यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि भाई एक्सपेंडिचर इन P इज इक्वल्स टू R विच इज ग्रेटर देन Q। अब आप अगर यहां पर देखें इस पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भाई P, Q और R में सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, बट P और R में एक्सपेंडिचर ज्यादा है एज कंपेयर टू द Q। तो बीइंग अ रैशनल कंज्यूमर अगर हम बात करें IC2, IC3 को भूल जाएं तो वी विल गो फॉर पॉइंट Q, क्योंकि यहां पर हम कम एक्सपेंस कर करके ज्यादा सेटिस्फैक्शन, ज्यादा क्या मतलब P और R के इक्विवेलेंट सेटिस्फैक्शन रिसीव कर रहे हैं। और अगर हम P और R पर जाते हैं तो हमारी इनकम भी ज्यादा लगेगी उसके अंदर। फाइन, तो एक ही हमारा हो गया इसके अंदर कि भाई एक्सपेंडिचर P और R में ज्यादा एज कंपेयर टू द Q। अगर हम इन पॉइंट्स की बात करें, बोथ आर लाइंग ऑन द बजट लाइन। फाइन, तो हमारा ये फर्स्ट कांसेप्ट। तो बीइंग अ रैशनल कंज्यूमर वी विल ऑप्ट फॉर द पॉइंट Q, क्योंकि यहां पर हमारी इनकम बेसिकली कम लग रही है। बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हम अब आते हैं सेकंड हमारे IC2 के ऊपर। नाउ IC2, इन केस ऑफ IC2 वी हैव, लेट्स सपोज दिस इज अवर पॉइंट M और यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं N एंड O। फाइन, तो M, N और O, अगेन M, N और O जो है वो सेटिस्फैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल आर सेम, ठीक है। बट अगेन एज पर एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू M इज इक्वल्स टू O विच इज ग्रेटर देन
n, तो भाई अगर आप रैशनल कंज्यूमर हो तो वी विल ऑप्ट फॉर द n, क्योंकि यहां पर हमारा एक्सपेंडिचर एज कंपेयर टू m एंड o क्या है, लेसर एक्सपेंडिचर है। फाइन, तो वी हैव टॉक्ड अबाउट द IC2। तो यहां पर सेटिस्फैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों पॉइंट, ये तीनों पॉइंट सॉरी इक्वल है, m n और o, और एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू से m और o इक्वल है विच इज ग्रेटर देन n। तो रैशनल कंज्यूमर ऑप्ट फॉर द व्हाट इज पॉइंट n, है ना। फाइन, अब आइए आप IC3 के ऊपर। लेट सपोज वी हैव IC3, हम इसको D, इस पॉइंट को नाम देते हैं E और इस पॉइंट को देते हैं G, बिकॉज F हमने यहां ले लिया तो G पॉइंट है। फाइन, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द IC3, हम बात कर रहे हैं अबाउट द IC3, तो सेटिस्फैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से D is equals to E is equals to G। फाइन, D, E और G तीनों पॉइंट सेटिस्फैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से सेम है। ऑल दीज 3 पॉइंट्स गिव द सेम सेटिस्फैक्शन, तीनों का सेटिस्फैक्शन सेम होगा। बट व्हाट अबाउट एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू? एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू में D is equals to D and G are different। हमें नहीं मालूम कि वो इक्वल है या नहीं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट मैं कहूंगा कि D इज गोइंग आउट ऑफ द बजट लाइन, सो D पॉइंट इज एक्चुअली अनअटेनेबल। इवन G पॉइंट इज ऑल्सो अनअटेनेबल, क्योंकि ये क्या हो रहा है, बजट लाइन को क्रॉस कर रहा है, ये उस एरिया में आ रहा है जो अबव द बजट लाइन है। ये तो हमारे लिए अटेनेबल है ही नहीं। अगर आपको अटेनेबल अनअटेनेबल का कंसेप्ट देखना है तो रेफर द कंसेप्ट ऑफ द बजट लाइन। मैं यहाँ पर कार्ड लगा दे रहा हूं। बट पॉइंट E इज एक्चुअली अटेनेबल। अब आप देखें तो पॉइंट D एंड पॉइंट G आर अनअटेनेबल एंड पॉइंट E इज अनअटेनेबल। ये हमारा जो है, ये हमारा बजट जो है, बजट डज नॉट अलाउ, है ना। इसमें भी हमारा बजट अलाउ नहीं करता और ये पॉइंट पर हमारा बजट अलाउ करता है। मीन्स एज अ रैशनल कंज्यूमर वी विल ऑप्ट फॉर द पॉइंट E इन दैट केस। क्यों पॉइंट E? क्योंकि भाई पॉइंट D और G तो है, ये तो हमारी रीच से ही बाहर हो चुका है, हमारा बजट इसको अलाउ नहीं करता। बट पॉइंट E हमारा बजट अलाउ करता है। एंड लिसन, पॉइंट E, इन पॉइंट E, ऑन पॉइंट E वी आर गेटिंग सिमिलर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इक्विवेलेंट टू D एंड G, और D और G हमारे बजट के बाहर है। हम इसको बोल सकते हैं कि भाई कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो हमारे बजट के बाहर हो और उस सिमिलर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हमें एक ऐसे पॉइंट पर मिल रहा है जो हमारे बजट के अंदर है, तो बेसिकली वी विल गो फॉर दैट पॉइंट विच इज एक्चुअली अटेनेबल, ठीक है ना, जो हमारे लिए अटेनेबल है। फाइन, अब हम इसके जितने पॉइंट्स हमने डिस्कस किए इसके ऊपर एक बार ये कंपैरेटिव स्टडी करें। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द पॉइंट्स विच आर लाइंग ऑन द बजट लाइन, है ना। जैसे अगर हम बात करें कि बजट लाइन पर कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, तो वी आर हैविंग टोटल, फर्स्ट पॉइंट इज पॉइंट P, M, E, O and R, these are the 5 points which actually lies on budget line। अगर हम बात करें तो ये इक्वल है एज पर एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू। एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल दीज पॉइंट्स आर बेसिकली इक्वल, बट एज पर सेटिस्फैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू P और P is lesser than M is lesser than E और O और ये बोल सकते हैं उसके अंदर, ठीक है ना। मींस पॉइंट M पर पॉइंट P से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो एज अ एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू से सब सेम है, हाँ। और अगर हम इसमें सेटिस्फैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी, हमें पॉइंट M पर पॉइंट P से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है तो हम पॉइंट P हटा देंगे, ठीक है ना। पॉइंट E से हमें पॉइंट M से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है तो वी विल ऑप्ट फॉर पॉइंट E इन दैट केस। अगेन पॉइंट O पर पॉइंट R से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है तो वी विल ऑप्ट फॉर पॉइंट O, और अगर E और O में किया जाए तो वी विल ऑप्ट फॉर पॉइंट E। पॉइंट E एक ऐसा पॉइंट है जिस पर हमारा बजट लाइन भी हमें अलाव करती है, और हम क्या कर रहे हैं, दूसरे पॉइंट के कंपैरिजन में वी आर रिसीविंग द कंपैरेटिव द मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम एज कंपेयर टू द पॉइंट P, M, O एंड R। इनसे हमारे पास ज्यादा कंपैरेटिवली सेटिस्फैक्शन रिसीव होगा। मींस पॉइंट E इज अवर इक्विलिब्रियम पॉइंट, हाँ, दिस इज अवर
equilibrium point means a person will opt for the point E. What is point E? Actually, point E is the point on which budget line and indifference curve goes tangent. ये tangent होकर के उसके पास उससे निकल गई है budget line. Fine. इनमें से हम किसी भी point को basically opt नहीं करेंगे. We will opt for point E, and our point E is our equilibrium point. मैंने आपसे कहा था कि भाई दोनों concept अब क्या होंगे? Match होंगे. अच्छा, अगर हम बात करें point E की, तो पॉइंट E जो है एज पर इंडिफरेंस कर्व, अगर हम इसकी इंडिफरेंस कर्व के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इट रिप्रेजेंट्स द MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ X फॉर Y, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भाई जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे तो हमारा Y और X का चेंज होगा, मार्जिनल रेट ऑफ सेटिस्फैक्शन और स्लोप जो है वो बेसिकली आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ना पड़ेगा. तो इट रिप्रेजेंट द मार्जिनल रेट ऑफ सेटिस्फैक्शन, और वी कैन से स्लोप ऑफ IC, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप रिप्रेजेंट करता है अगर हम पॉइंट E की बात करें ऑन इंडिफरेंस कर्व. एंड इफ वी टॉक अबाउट पॉइंट E ऑन बजट लाइन, तो इट रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ बजट लाइन. और एंड इन लास्ट लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज ऑलवेज इक्वल्स टू द प्राइस रेशो. ये प्राइस रेशो की इक्विवेलेंट होता है बिकॉज बजट लाइन शोज रिप्रेजेंट्स द कांस्टेंट स्लोप. बजट लाइन पर कांस्टेंट स्लोप होता है, और जो पॉइंट E पर जो प्राइस रेशो होगा दैट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू OA एंड OF. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो अगर हम इन दोनों कंसेप्ट्स को इक्वल करें तो हमारा पॉइंट E, पॉइंट of equilibrium, will be when price ratio is equals to the marginal rate of substitution of X for Y. तो जब ये पॉइंट हमें मिल जाएगा then only our equilibrium point will be struck as per the ordinal approach, और उसमें हमारा E पॉइंट के ऊपर बेसिकली आ रहा है. फिर से बोल रहा हूं मैं कि E पॉइंट इंडिफरेंस करके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ IC एज वेल एज द स्लोप ऑफ बजट लाइन. दोनों का स्लोप रिप्रेजेंट करता है, एंड स्लोप ऑफ IC इज रिप्रेजेंटेड बाय द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ X over Y, and budget line represents the slope of budget line, or we can say the price ratio between the two. दोनों का price ratio हम previous lecture में already discuss कर चुके हैं. So our equilibrium point as per the ordinal approach always strikes when price ratio is equals to the marginal rate of substitution, that is on point E. So point E is our equilibrium point. So fine. So this is all about the striking of consumer equilibrium as per the ordinal approach. So if you feel any query, any doubt in this lecture or anything about this lecture, you can ask in the comment section. Thank you. Thanks a lot.